Hello, assalamu alaikum, my dear students. Hope you will be fine. Today we'll be discussing a very important concept, that is water potential. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीडी. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है अब तक, पहले वो लेक्चर देख लीजिए, इसके बाद इस लेक्चर को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लिसन, व्हाट इज दिस वाटर पोटेंशियल? पहले बोलूंगा. This term water potential and concept of water potential was given by two scientists, Slater and Taylor. पहला पॉइंट आप लिखेंगे, concept and termed by Slater and Taylor means concept of water potential and term water potential was given by Slater and Taylor. Concept and termed by Slater and Taylor. दो साइंस ने इसका कंसेप्ट दिया, एक टर्म कॉइन की. ओके, वाटर पोटेंशियल है क्या? वाटर पोटेंशियल मैं आपको ऐसे बोलूंगा, you know, free energy. Free energy is the amount of energy that's available in a system that can be, used to perform a work. Now, आपके पास एक मोल है, फॉर एग्जांपल वाटर है, किसी भी सब्सटेंस का. फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, एग्जांपल से समझाऊंगा. NaCl का एक मोल आपको देखना है. NaCl का एक मोल है तकरीबन 58.5 ग्राम. चलो 58 ग्राम मानेंगे NaCl का एक मोल. कैसे? सोडियम का मास कितना है? 22, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 11, मास नंबर ऑलमोस्ट डबल होता है उसका. इसका एटॉमिक नंबर है 11 सोडियम का, तो मास क्या होगा? उल्टा, इसका दुगना, दैट मींस 22. क्लोरीन का कितना होगा? 17 है एटॉमिक नंबर, और मास होगा 35.5 है, 35.5. तो इनको सम कीजिए, 22 प्लस 35.5 दैट इज 58 ग्राम्स. 58 grams of NaCl means 1 mole of NaCl. आपको वाटर का देखना है 1 मोल. हमारे पास है H2O, इसका एक मोल देख लीजिए. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, मास नंबर भी 1 है. हाइड्रोजन का 1 है. 2 हाइड्रोजन है, उसका भी 1 है मास नंबर. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी, मास भी है 1. तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मास क्या है? 16, मास है 16. सम कीजिए, 16 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 18 grams. 18 grams of water is called 1 mole of water. ये है 1 मोल H2O का. एक मोल में कितने फ्री एनर्जी मौजूद है? The amount of free energy present in 1 mole of any substance, that is called as chemical potential. Chemical potential एक टर्म हमने बोली. Concept and term water potential was given by Slater and Taylor. Now, what's chemical potential? To understand water potential, you must know what is chemical potential. Chemical potential means the amount of free energy, the free energy content present in 1 mole of substance. For example, what is the chemical potential in case of 1 mole of NaCl? शाबाश, हम बोलते हैं 1 मोल NaCl में कितनी फ्री एनर्जी होगी. That's called chemical potential. Okay? वाटर का केमिकल पोटेंशियल क्या होगा? हाँ, हम बोलेंगे 18 ग्राम्स में कितनी फ्री एनर्जी होगी. The free energy content present per mole or per 18 grams of water. हम इसका बोल देंगे ये केमिकल पोटेंशियल है वाटर का. Chemical potential means the free energy present per mole of any substance. For example, the free energy present in 1 mole of NaCl is called chemical potential of NaCl. इसी तरह केमिकल पोटेंशियल हम करते हैं टर्म किसी भी सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल. फ्री एनर्जी कितनी होगी मौजूद 1 मोल में. और वाटर के लिए हम टर्म केमिकल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं करते. हम केमिकल पोटेंशियल के लिए इस्तेमाल करते हैं वाटर के 1 मोल के अंदर जो फ्री एनर्जी होगी उसी को हम बोलते हैं नाम वाटर पोटेंशियल. व्हाट इज नाउ वाटर पोटेंशियल? केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल. आप बोलेंगे केमिकल पोटेंशियल के बदले हम क्या बोलते हैं?
free energy present in 1 8 grams. 1 8 means 18 grams, means per mole of water. Free energy present per 18 grams of water is called as water potential. Chemical potential of water is called, आप लिख सकते हैं नीचे, पहले आप लिखेंगे नीचे, पहला पॉइंट मैंने लिखा है concept and term water potential was given by Slater and Taylor. Done. नीचे देखो, since chemical potential means free energy present per mole of any substance. Okay. Next point लिखेंगे, the chemical potential of water is called water potential. Chemical potential of water is called water potential. या आप बोल सकते हैं, the free energy present per mole of water is called water potential. 1 mole of water means 18 grams of water. It's called water potential. Water potential is represented by psi, इसको हम psi बोलते हैं, psi w. ये psi आप इस्तेमाल करते हो केमिकल साइंस में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन में ना, वेव फंक्शन. तो यहाँ पे psi w is a symbol for water potential. Water potential is represented by psi w. Okay, so what's water potential now? The free energy present per mole of water is called as water potential. Okay, 18 grams में प्योर वाटर के अंदर क्या होगी? फ्री एनर्जी. दैट्स कॉल्ड वाटर पोटेंशियल. यहां समझाएंगे आप. बाय कन्वेंशन देखा गया कि फॉर प्योर वाटर बाय कन्वेंशन है psi w. फॉर प्योर वाटर psi w इज इक्वल टू 0. ये हमने ऐसे एज्यूम किया है, ये हमने स्टैंडर्डाइज करने के लिए, कोशिश करने के लिए ये चीज किया है. वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल फॉर प्योर वाटर इज 0. मीन्स 0 डज नॉट मीन देयर इज नो फ्री एनर्जी. इमेजिन दिस थिंग. इसको इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज. लिसन, फॉर प्योर वाटर psi w वाटर पोटेंशियल इज एज्यूम्ड एज 0. इट्स एज्यूम्ड स्टैंडर्डाइज करने के लिए. 0 का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, एक बीकर है हमारे पास. इस बीकर में हमने डाला 1 मोल ऑफ वाटर. हमने 1 मोल डाला किसका? प्योर वाटर का. इस 1 मोल ऑफ प्योर वाटर में कितनी फ्री एनर्जी होगी? वो है वाटर पोटेंशियल. सारे वाटर मॉलिक्यूल्स चूंकि फ्री है तो कितनी एनर्जी इसमें होगी? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू विल बी देयर. मैक्सिमम हाईएस्ट फ्री एनर्जी विल बी प्रेजेंट इन वाटर इन इट्स प्योर स्टेट, because there is no solute molecule to disturb the movement of these water molecules. Okay, that means pure water has the maximum highest free energy. That highest value has been standardized to be called as 0. Okay, the free energy for pure water is maximum, and the maximum value assigned is 0. Highest value for water potential is for pure water equal to 0. Okay, this pure water has the highest psi w, highest maximum psi w. Maximum psi w is 0. That too for pure water. Pure water has highest or maximum value of water potential equal to 0. तो pure water के लिए water potential का वैल्यू सबसे highest है, that is equal to 0. 0 does not mean there is no free energy. 0 means all water molecules are free. अब imagine यहाँ कीजिए, हमारे पास वाटर, मैं आपको समझाऊंगा आसान शब्दों में. अगर आपको इस तरीके से भी समझ आज नहीं आ जाएगा, बैठ करो, फिर कोई और तरीका नहीं है समझाने का. मेरे पास 2 बीकर्स है. मैंने इसमें डाला 1 मोल प्योर वाटर का. 1 मोल आप क्या समझेंगे? 1 मोल प्योर, मैं आपको अभी बोलूंगा. 1 मोल प्योर वाटर, आपको मोल समझ नहीं आ जाएगा. 18 ग्राम्स आप मान लीजिए. 18 ग्राम्स मैंने यहाँ पे प्योर वाटर के डाले. प्योर वाटर के डाले यहाँ पे 18 ग्राम्स. 1 मोल यहाँ भी, 1 मोल यहाँ भी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस प्योर वाटर में ये मैं वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ. ये वाटर मॉलिक्यूल्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है. मान लीजिए 1 मोल में 10 है ना, 8 point ना साइन. देयर आर 6 points ना एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स.
एक हम इमेजिन करने के लिए आपको बोल सकते हैं 1 मोल वाटर में फॉर एग्जांपल इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल है, 10 के 10 फ्री है क्योंकि प्योर वाटर है। यहाँ पे होगी ना 10 वाटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वाटर मॉलिक्यूल है प्योर वाटर में। 1 मोल में 10 वाटर मॉलिक्यूल सारे के सारे फ्री है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई सॉल्यूट नहीं। यहाँ पे वैसी सिचुएशन है। ये मान लीजिए सिस्टम ए, ये मान लीजिए सिस्टम बी। इमेजिन कीजिए इसको, मैं समझाऊंगा आपको ऐसे। सिस्टम ए, सिस्टम बी, इसमें प्योर वाटर 1 मोल, इसमें प्योर वाटर 1 मोल, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के, इसमें भी 10 मॉलिक्यूल वाटर के। सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल फ्री है, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे इसमें फ्री एनर्जी? हाईएस्ट मैक्सिमम, क्योंकि वाटर प्योर स्टेट में है। सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, दैट मींस फ्री स्टेट। ओके, ये भी फ्री स्टेट में है, कोई डिस्टर्बेंस, कोई सॉल्यूट नहीं है। तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? प्योर वाटर है ना, जीरो होगा। इसका भी क्या होगा? जीरो मींस हाईएस्ट वैल्यू होगा। वेरी गुड। इसका साइड आप लो जीरो होगा, क्योंकि प्योर स्टेट में वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है, हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है। इसका भी साइड आप क्या होगा? जीरो। ओके, नाउ मान लीजिए सिस्टम ए में, सिस्टम ए जो है हमारे पास प्योर वाटर, मैं इसमें यहां भी क्या है? 1 मोल वाटर, यहां भी क्या है? 1 मोल वाटर, यहां 10 वाटर मॉलिक्यूल, यहां 10 वाटर मॉलिक्यूल, दोनों जगह फ्री है, दोनों जगह वाटर पोटेंशियल सेम है, दोनों जगह हाईएस्ट फ्री एनर्जी है, इक्वल टू जीरो मींस हाईएस्ट। नाउ सिस्टम ए में मैं करूंगा डिसॉल्व सॉल्यूट, थोड़ा सॉल्यूट में लाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं लगाऊंगा इसमें NaCl, मैं लगाऊंगा थोड़ा NaCl इसमें। कितना डालूंगा? फॉर एग्जांपल मैं मोल वोल नहीं बोलूंगा, चलो कुछ मॉलिक्यूल मैंने लगाए, सॉलिड में दिखाऊंगा, सॉलिड में ये अक मॉलिक्यूल, ज मॉलिक्यूल, चलो 3 मॉलिक्यूल लगाओ। इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल थे इससे पहले, हाँ इसमें भी 10 वाटर मॉलिक्यूल, सही बात है। अब मैंने इसमें क्या किया? सिस्टम ए में मैंने डिसॉल्व किया NaCl, थोड़ा सा NaCl, कितना? मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल, आधा मोल, 0.25 मोल, व्हाटएवर, 3 मॉलिक्यूल मान लीजिए आप सॉल्यूट के। जो ही मैंने सॉल्यूट के 3 मॉलिक्यूल में डिसॉल्व किए, मान लीजिए NaCl में डिसॉल्व किया, तो NaCl चूंकि जो ही इसमें आप डिसॉल्व करेंगे, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है। चलो ठीक है, NaCl के मैंने 3 मॉलिक्यूल डिसॉल्व किए थे, क्या बनेगा? Na अलग निकल जाएगा, Cl अलग, तो ये 6 बनेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। NaCl के 3 मॉलिक्यूल मैंने डिसॉल्व किए थे, 3 को बन गए 6, क्योंकि Na अलग निकल जाएगा, Cl अलग निकल जाएगा। 1 2 3 4, ये 5, ये 6। वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? 10। NaCl के कितने मॉलिक्यूल है? अब 3 बने, कितने? Na कितने हैं? 3, Cl 3, टोटल 6 ही है, 6 मॉलिक्यूल। अब देखो सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व ये तभी हो जाएगा जब ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। कोई चीज दूसरे किसी चीज में मिक्स तभी हो जाएगा जब में इसमें डिसॉल्व होगा। मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन पूछे का। अगर आपको कोई मेहमान आ गया घर, कोई मेहमान, आप इसको जानते नहीं हो, आपने इसको पॉजिटिव रेस्पॉन्ड भी नहीं किया, तो आप बात नहीं करोगे अच्छे से, वो तंग आ जाएगा, वो निकल जाएगा, क्योंकि वो मिक्स नहीं हुआ ना आपके साथ, तो अल्टीमेटली वो भाग जाएगा वहां से। कोई ऐसा मेहमान आएगा, वहां से आया, आपने चाय पिलाई, त्रेश पिलाई, जूस पिलाया, बत्ता, व्हाटएवर जो भी आपके पास था, आपने बड़ा अच्छे अंदाज में इसको ना अच्छा पीस जेस्चर दिखाया, आपने उसको जबरदस्त मेहमान नवाजी करो थे। विद रिजल्ट वो आपसे थोड़ा मिक्स हो जाएगा, बातें आप करेंगे उनके साथ में, विल बी हैविंग ए ग्रेट इंटरेक्शन। वही बात है, कोई चीज किसी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व तभी हो जाएगा जब वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उस सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे NaCl मैंने लगाया, ये तभी डिसॉल्व हो जाएगा इस वाटर के अंदर जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट किससे करेगा? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 10 वाटर मॉलिक्यूल। तो अल्टीमेटली NaCl जो है डिसॉल्व करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। इससे पहले सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या थे? फ्री। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है मेहमान है, NaCl जो है मेहमान हुआ। ये मिशन जनाबेली आग नीबिर की नया जनाबेली मेहमान साहब, ये मिशन मेहमान साहब जबरदस्त अंदाज में। ये फॉर एग्जांपल Na है, NaCl का Na, ये मिशन वाटर मॉलिक्यूल आग नीबिर की अतम क्या इसम फ्री, अतम इसम काम करा पने वो, लेकिन जनाबेली मेहमान से कथ करनस फ्री एनर्जी क्या गई? काम करनस मा छु कहीं,
फ्री एनर्जी मा छवा या छ फॉर एग्जांपल अस त्रे शे अस लग शना फॉर एग्जांपल आवे अत रूद सोरे वाटर मॉलिक्यूल फ्री तिमन फ्री एनर्जी रूज ना सोल्यूट डिसॉल्व करने से क्या गैस फ्री एनर्जी वाटर चे कम कचा कम हाईएस्ट क्या प्योर वाटर में जीरो वैल्यू कम गैस जीरो का कम नेगेटिव मतलब गो दुनिया के अंदर जब भी आप प्योर वाटर देखेंगे प्योर स्टेट में वाटर का वाटर पोटेंशियल फ्री एनर्जी हाईएस्ट होगी उस हाईएस्ट को हमने कन्वेंशन के तौर पे एज्यूम किया है वैल्यू जीरो जीरो मींस हाईएस्ट होगी जब भी हम सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे सोल्यूट इंटरैक्ट कर सकता है करता है डेफिनेटली सोल्यूट इंटरैक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ विद रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ एंगेज होते हैं इन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो फ्री एनर्जी कंटेंट है वो कम होगा विद रिजल्ट सोल्यूट डिसॉल्व करने से वाटर का पोटेंशियल फ्री एनर्जी कम होती है कितने कम जीरो से कम मींस इट बिकम्स नेगेटिव psi w will be equal to negative in case of solutions. Every solution has negative water potential. Negative does not mean there are no free water molecules. Negative means there are not all water molecules free. Some water molecules have interacted with the solute molecules. Now only few water molecules are left, for the free, movement. Okay. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारे वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री है इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा वही जो था जीरो सोल्यूट डिसॉल्व करने से वाटर पोटेंशियल क्या होता है कम हो जाता है कितना कम जीरो से कम मींस नेगेटिव ऑल सॉल्यूशंस हैव नेगेटिव वाटर पोटेंशियल नोट करेंगे पॉइंट फॉर प्योर वाटर अब लिखेंगे फॉर प्योर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू फॉर psi w psi w has highest value of 0 for pure water. The water in pure state is highest psi w by convention under standard temperature and pressure. Okay. Now, when solute is dissolved in pure water, the water potential of pure water will decrease. It will decrease below 0. It will become negative. By dissolving solute, the water potential decreases. It becomes negative. Okay. All solutions have negative water potential. Done. अब देखो मैं आपको समझाऊंगा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा चलो ये पे बोलूंगा जवाब देना मुझे जवाब देना इस चीज का मेरे पास दो सिस्टम है सिस्टम ए सिस्टम बी इसका वाटर पोटेंशियल जीरो है मींस ये प्योर वाटर हो सकता है डेफिनेटली इसका वाटर पोटेंशियल -5 एटमॉस्फेयर है फॉर एग्जांपल -5 एटमॉस्फेयर बार या पास्कल प्रेशर यूनिट्स इसका मतलब क्या है ये प्योर वाटर होगा यहाँ प्योर स्टेट में यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म में होगा सॉल्यूशन फॉर्म में क्योंकि नेगेटिव है ना वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का जीरो होता है और बाकी सिस्टम्स का होता है नेगेटिव वाटर पोटेंशियल अगर मैं ऐसे बोलूंगा इसका वाटर पोटेंशियल है -10 होगा -10 यहाँ पे -5 व्हाट डज इट मीन यहाँ पे ज्यादा सॉल्यूट है यहाँ ज्यादा सोल्यूट है बहुत ये सॉल्यूशन थोड़ा कंसंट्रेटेड है इसके मुकाबले में इतना डाइल्यूट है इसमें ज्यादा सोल्यूट हो सकते हैं या कोई सोल्यूट वायरस ज्यादा इसमें ज्यादा सोल्यूट से ये जीरो से नीचे आ गए -10 तक ये ज्यादा नेगेटिव इसमें ज्यादा कमी हो गई फ्री एनर्जी की इसमें इससे कम है हाफ है तो विद रिजल्ट अगर हम देखेंगे इन दो सिस्टम्स को आपस में ज्वाइन करेंगे वाटर कहां से कहां जाएगा यहां से कहां से कहां इसमें ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल फ्री क्योंकि -5 है ना ये बड़ा वैल्यू है ये छोटा वैल्यू है तो वाटर यहां से यहां आ जाएगा वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम शाबाश हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल इट्स अ हायर वैल्यू -5 बड़ा वैल्यू है -10 छोटा वैल्यू है ओके वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल अगर दोनों सिस्टम्स का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव है वाटर कहां से मूव करेगा शाबाश वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल दैट इज फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव वैल्यूज समझाया आप अगर आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगा चलिए यहां पे छोटी सी एग्जांपल बोलूंगा दो सिस्टम है हमारे पास सिस्टम ए सिस्टम बी इसका psi w इक्वल टू -9 एटमॉस्फेयर फॉर एग्जांपल
इसका साइन W इक्वल टू -3। व्हाट डज इट मीन? ये ज्यादा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, ये इसके मुकाबले में डाइल्यूट है, इसमें कम सोल्यूट है, इसमें ज्यादा सोल्यूट है। तो वाटर कहां से कहां जाएगा? अगर इसमें ज्यादा सोल्यूट है वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे फ्री, इसमें कम सोल्यूट है ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल फ्री होंगे। कॉमन सेंस, सोल्यूट ज्यादा लगाएंगे नफरी के लगे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल एंगेज करने। तो यहाँ पे कुछ आपने सोल्यूट लगा -3 तक, 0 से -3 तक लाया है, कम सोल्यूट आपने ऐड किया है। 0 से -9 तक लाया, ज्यादा सोल्यूट ऐड किया है। इसका मतलब हो गया यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा फ्री होंगे अभी भी इसके मुकाबले में। वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा। वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ये हायर वैल्यू है ना, ये लोअर वैल्यू। हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव वैल्यूज। समझाया? दिस इज वाटर पोटेंशियल। ओके, नाउ आगे चलते हैं। अगर आपको मैं एक चीज बोलूं ऐसे, या देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा आपको, अगर यहां तक ये जो मैंने बकवास किया अगर ये समझ नहीं आया तो इससे समझ आ जाएगा इस चीज से। dpd इज इक्वल टू -psi मैं क्या कर रहे हैं, dpd इज इक्वल टू -psi। वाटर पोटेंशियल ही dpd है। पुराने जमाने में हम बोलते हैं dpd, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, टर्म को रिप्लेस किया गया। अब आजकल हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। फर्क क्या है? उल्टे है। वाटर पोटेंशियल इज इनवर्स ऑफ, अपोजिट ऑफ dpd, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। मैंने आपको बोला था dpd के बारे में। dpd उल्टा है वाटर पोटेंशियल का। फर्क क्या है? इनका साइन उल्टा होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। इसका वैल्यू नॉर्मली पॉजिटिव होता है, dpd इज नॉर्मली पॉजिटिव, वाटर पोटेंशियल इज नॉर्मली नेगेटिव। हालांकि 0 भी होता है ये कैसा? प्योर वाटर। नाउ लिसन, इसका मतलब क्या है? dpd इज इक्वल टू -psi। मैं आपको समझाऊंगा। प्योर वाटर, प्योर वाटर, इससे मुझे बोलो प्योर वाटर के लिए साइड W कितना होता है? 0। प्योर वाटर के लिए साइड W इज इक्वल टू 0। और आपकी इक्वेशन ऑलरेडी ऐसी है, dpd इज इक्वल टू -psi। व्हाट विल बी dpd हियर? प्योर वाटर के लिए dpd आप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला इस्तेमाल करो ना, -0 मींस 0। dpd खुद ब खुद 0 होगा। यहां भी dpd विल बी इक्वल टू साइड W, अगर ये 0 है साइड W इज इक्वल टू -0, ये 0 होगा। -0 ही 0 होता है। ओके, वो जहां dpd 0 होगा वहां वाटर पोटेंशियल भी 0 होगा। लेकिन जहां dpd का वैल्यू होगा फॉर एग्जांपल +15 एटमॉस्फेयर, ये होगा -15। dpd पुरानी टर्म थी, इसको रिप्लेस किया गया है वाटर पोटेंशियल से। दैट्स सिंपल। नाउ dpd का वैल्यू नॉर्मली पॉजिटिव में होता है और वाटर पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में होता है। एक ही बात है, डिफरेंट अंदाज में, दो डिफरेंट तरीकों से हम एक ही बात बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर है, यहाँ इसमें वाटर पोटेंशियल क्या है? 0। हमने इसमें सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज मीन 0 से नीचे, मतलब इट विल बिकम नेगेटिव। वो सोल्यूट डिसॉल्व करने से वाटर पोटेंशियल घट जाता है, नीचे आता है, 0 से नीचे मतलब नेगेटिव बन जाता है। सोल्यूट डिसॉल्व करने से dpd बढ़ जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, क्योंकि जो ही आपने सोल्यूट ऐड किया, वर्थ चुका, जो ही आपने सोल्यूट ऐड किया वो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट किए किसके साथ? वाटर के साथ, तो उनकी फ्री एनर्जी कम हो गई। कितने कम? 0 से कम, मतलब नेगेटिव आ गया। वाटर पोटेंशियल नेगेटिव बन जाएगा सोल्यूट डिसॉल्व करने से। अब सोल्यूट आपने डिसॉल्व किया, वाटर पोटेंशियल कम हो गया डेफिनेटली, क्योंकि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ने इंटरेक्ट किया किसके साथ? वाटर के साथ, फ्री एनर्जी कम हो गई। अगर ऐसे सिस्टम को जिसमें हमने सोल्यूट ऐड किया ज्वाइन करेंगे फॉर एग्जांपल प्योर वाटर के साथ, क्या होगा? प्योर वाटर इसमें दाखिल हो जाएगा, क्योंकि प्योर वाटर में सारे वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री है, इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल सोल्यूट के साथ मौजूद है, तो वाटर यहाँ घुस जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगी? इसके अंदर थर्स्ट पैदा होगी। सोल्यूट डिसॉल्व करने से थर्स्ट होती है पैदा सिस्टम में, सॉल्यूशन में, विद रिजल्ट थर्स्ट टू एब्सॉर्ब वाटर इज कॉल्ड dpd।
तो डीपीटी बढ़ जाएगा। आप और सॉल्यूट लगाओ और ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, और सॉल्यूट लगाओ वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। दैट्स इज द सेम थिंग इन टू डिफरेंट सेंसेस। तो सॉल्यूट डिसॉल्व करने से वाटर पोटेंशियल होता है नेगेटिव। आपने डिसॉल्व किया, ये -2 था, और डिसॉल्व किया -5 हो जाए, और डिसॉल्व -20, और डिसॉल्व -50। तो आप सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे, जितना आप सॉल्यूट डिसॉल्व करें उतना इसका डीपीटी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने सॉल्यूट ऐड किया, इसमें इसका वाटर पोटेंशियल हो गया साइड -2 एटमॉस्फेयर, और जितना आप सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे उतना इसमें डीपीटी होगा 2, उल्टा। समझाया? इसका मतलब हो गया जितना सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे एक सिस्टम में उतना इसमें नेगेटिव वाटर पोटेंशियल आ जाएगा, और उसी के साथ जितना आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं उतना इसमें डीपीटी बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, उतनी इसमें थर्स्ट वाटर एब्जॉर्ब करने के बढ़ जाएंगे। ओके, नाउ आप देख लीजिए, इस वाटर पोटेंशियल के लिए इक्वेशन है हमारे पास साई W इज इक्वल टू साई S प्लस साई P। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है। साई M भी होता है कभी कभार मैट्रिक पोटेंशियल, वो हम इम्बिबिशन में देखेंगे। नॉर्मल इक्वेशन है साई W इज इक्वल टू साई S प्लस साई P। साई W क्या है? वाटर पोटेंशियल। साई S क्या है? हाँ, साई S, इसको हम बोलते हैं solute potential or osmotic potential। osmotic potential, solute और osmotic potential। psi p क्या है? it is pressure potential। समझा होगा ये क्या है? आपको मैंने ऑलरेडी बोला है आपको psi w is equal to psi s plus psi p। सही बात, ऊपर मैंने लिखा है। आपको मैंने ऑलरेडी बोला था डीपीटी सक्शन प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ये भी बोला है। यू रिमेंबर इट? ओके, साइड टू साइड प्लस साइड पी, डीपीटी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। आप देखो ना, साइड डब्ल्यू डीपीटी, साइड डब्ल्यू वो भी हमने बोला है। फॉर एग्जांपल डीपीटी, डीपीडी इज इक्वल टू माइनस साइड डब्ल्यू। डीपीटी और साइड डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल और डीपीटी के बीच इनवर्स रिलेशन है। यह जहां पे होगा जहां पे होगा +13 एटमॉस्फेयर, ये होगा -13, जहां ये होगा 2, ये होगा -2, उल्टा। ओके, यहां देखो आप, साइड डब्ल्यू इज इक्वल टू डीपीटी, मैं उल्टा साइन है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, वी नो इट। तो साई एस सोल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यहां बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम थिंग। ऑस्मोटिक प्रेशर आप बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर, या बोलो सोल्यूट पोटेंशियल, ये वाला सोल्यूट पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक ही चीज है, बराबर वही बात है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। मैं समझाऊंगा आपको, समझाऊंगा 1 मिनट में। यहाँ देखो, पहले हम देखेंगे इसके बारे में। चलो पहले मैं ये बोलूंगा सोल्यूट और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। देखो सोल्यूट और ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? देखो यहाँ बीकर है कि हमारे पास, इसमें मुझे बोलो इसमें डीपीटी कितना होगा। अगर आपको डीपीटी नहीं आएगा कैलकुलेट, मैं आपको बोलूंगा उल्टा। हमारे पास प्योर वाटर है, इसमें क्या होगा? साइड डब्ल्यू 0, क्योंकि प्योर वाटर है, साइड डब्ल्यू इक्वल टू 0, वी नो इट। साइड डब्ल्यू वी नो इट्स इक्वल टू माइनस डीपीटी, है ना? ओके, डीपीटी इज इक्वल टू माइनस साइड डब्ल्यू। तो डीपीटी होना इसका उल्टा, वो भी होगा 0, 0 का उल्टा -0 + 0 सेम। नाउ आपने सोल्यूट ऐड किया, व्हाट विल हैपन? सोल्यूट डिसॉल्व करने से इसका डीपीटी बढ़ जाएगा, इसका डीपीटी बन जाएगा पॉजिटिव प्लस। सोल्यूट डिसॉल्व करने से वाटर पोटेंशियल घट जाएगा, ये माइनस होगा। कॉमन सेंस, जितना डीपीटी बढ़ जाएगा उतना ही वाटर पोटेंशियल में कमी आ जाएगी, दिस कॉमन सेंस। नाउ मसला अब है, जो ही आपने सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूट डिसॉल्व करने से कितना फ्री एनर्जी, कितना वाटर पोटेंशियल इसमें कम हो गया। Decrease in water potential, decrease in free energy of water by addition of solute is called solute or osmotic potential। solute dissolve करने से free energy कम हो जाएगी। हाँ, solute dissolve करने से free energy कम होना, इसी को हम बोलते हैं solute और osmotic potential। वो solute का असर क्या होता है वाटर पोटेंशियल पे? ये increase करता है free energy की डिक्रीज, it will be always negative।
psi s is always negative means it always decreases water potential. It causes water potential to decrease to go below zero and all negative में ले जाता है. Solute potential or osmotic potential means the decrease in water potential or decrease in free energy by addition of solute. That's it. It is always negative because it reduces water potential or free energy of a system. समझा है? अब देखो solute dissolve करने से इसका osmotic pressure बढ़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इसका psi s फॉर एग्जाम्पल इसका कितना हो गया डिक्लाइन, ये हो गया फॉर -5 तक, -5 एटमॉस्फेयर तक ये कम हो गया इसका सोल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल. ऐसे वाटर पोटेंशियल में कमी आ गई. psi s सोल्यूट डिसॉल्व करने से -5 तक बहुत कमी आ गई. इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, ये +5. उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से सोल्यूट की वजह से जो प्रेशर आ जाएगा दैट्स कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर उल्टा है ऑस्मोटिक पोटेंशियल. मैं ऐसे लिख सकता हूँ OP ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू -psi s. अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का पता है ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर एग्जांपल 5, इसका सोल्यूट पोटेंशियल इसका उल्टा होगा -5. ऐसे सेम बात है डिफरेंट स्टाइल. अब दूसरा क्या है हमारे पास, प्रेशर पोटेंशियल. जो यहाँ पे ये सोल्यूट पोटेंशियल, ये क्या होता है हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि ये डिक्रीज करता है वाटर पोटेंशियल को. psi p मींस प्रेशर पोटेंशियल. प्रेशर पोटेंशियल क्या हो गया, कितना प्रेशर जनरेट. फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा ऐसे. आप मान लीजिए प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू दैट टर्गर प्रेशर जो आपने बोला है, इट इज टर्गर प्रेशर. वही टर्गर प्रेशर यू नो कितना प्रेशर जनरेट हो जाएगा सेल के अंदर, किस पे, कितना प्रोटोप्लास्ट करेगा एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑन द सेल वॉल, दैट्स कॉल्ड टर्गर प्रेशर. ये प्रेशर पोटेंशियल वही है. मैं आपको समझाऊंगा सॉल्यूशन में समझाऊंगा. हमारे पास एक सिस्टम है, सॉल्यूशन है, ठीक है. इस सिस्टम में सॉल्यूशन में वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा कि जीरो, सॉल्यूशन में नेगेटिव होगा. फॉर एग्जांपल -5 एटमॉस्फेयर है ये. हमने इस सॉल्यूशन को ऊपर से बंद किया, बंद किया इसको, हमने इसको बंद किया, ठीक है. ऊपर से करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट. एक सॉल्यूशन पे या एक सिस्टम पे जो है एक्सटर्नल प्रेशर हम करेंगे एक्सर्ट. मैं आपको psi p प्रेशर पोटेंशियल, टर्गर प्रेशर आपको समझा रहा हूं. प्रेशर पोटेंशियल क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी सिस्टम पे, व्हाट विल हैपन टू इज फ्री एनर्जी, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम. By applying external pressure on a system or solution, it is water potential will increase. ये increase हो जाएगा क्योंकि this energy जो आप extra energy करते हैं apply, it will change to internal energy of the system. Overall water potential will increase. उस pressure exert करने से solution पे water potential इसमें इजाफा होता है, it increases. Because this pressure energy, mechanical energy, it converts to internal energy of the system. तो इसका वैल्यू क्या होता है इस पे? It is positive. इसका पॉजिटिव असर होता है इस पे.